Hello students, welcome back. Children, as far as the writing skills are concerned, we have already discussed one of the topics, that was summary writing in one of the lectures. Then the second chapter, that is there, children, that is called a mind mapping. We'll be discussing it in the coming lectures. Today, one topic, children, we have already studied in our lower standards. We'll just clear it up. The name of the topic, as you can see on your screen, children, it's note making. Okay. Now, note making, children, by note making, we basically understood that like we are actually given a paragraph and then we convert it into a beautiful tree diagram, or we take out the key points, important points, all the details, and arrange it in a very systematic manner. Yeah, Phil, sometimes, children, we used to have one question that was called as the tree diagram. It's a part of what's known as the note making. Now, if you can see on your screen, children, they've just highlighted two words here. One which is known as note taking, and children, we have got one which is known as note making. We'll just try to understand like what exactly is the difference between note making and note taking. Notes मतलब पता है बच्चों हम लोग कभी भी कुछ important काम होता है, whenever we are listening to a speech, whenever we are attending the lectures, or whenever we are observing something, children, so we have a habit of noting down important points, because human brain, children, it comes with the limitations. You cannot remember everything that you have seen or everything that you have heard. So we put down some important points which will actually help you to know those things or comprehend those things properly in the coming times or after a time gap. And one more thing, children, like whatever is said, now you are understanding it. Now, if you want to make it quite easier for someone to understand it in a very simple way, then I think this note making becomes very important. Acha. Now, first of all, many of you might have a misconception, sirs, that note taking and note making are one and the same. But let me tell you, children, that both the skills are very different, or they are totally different, children. So, note taking is different and note making is different. Acha. So you will say like, sir, what exactly is the difference? So note taking is a passive process. Note taking is a passive process which is undertaken during lectures. जैसे कि अगर आप lecture के लिए बैठे हो and you're taking down the notes whatever the professor or madam is explaining to you. So it's a passive process, children. You don't have much to do in that. Just like you are putting it down on your notebook, on your sheet of paper, whatever is being said, right? जैसे कि एक सेक्रेटरी होता है चलो, एंड देन उसका बॉस जो भी डिक्टेट करता है तो सेक्रेटरीज दे टेक डाउन द नोट्स. सो नोट टेकिंग एट अ ग्लांस गिव्स अ कंप्लीट व्यू ऑफ अ पैराग्राफ और एनी कंटेंट व्हिच कंटेन्स द मेन पॉइंट्स एंड सपोर्टिंग डिटेल्स ऑफ व्हाट इज हर्ड. तो चलो आप एक आध लेक्चर के लिए बैठे हो या फिर आप एक आध स्पीच सुन रहे हो, अच्छा, और उसको सुनते हो बच्चों लोग, आपने सब मेन पॉइंट्स और जितने भी सपोर्टिंग डिटेल्स है उसको एक पैराग्राफ में मतलब पैराग्राफ में लिख दिया है सिर्फ. सो दैट इज कॉल्ड ए नोट टेकिंग. क्या बोलेंगे उसको हम लोग? नोट टेकिंग करके बोलते हैं. नाउ टेकिंग नोट्स व्हाइल रीडिंग फ्रॉम डिफरेंट बुक्स एंड प्रेजेंट फॉर डिफरेंट पर्पसेस. दैट्स लाइक चिल्ड्रन, व्हेनेवर आई एम रीडिंग अ बुक आई माइट हैव अ हैबिट ऑफ टेकिंग डाउन द नोट्स ना चिल्ड्रन, कि लाइक अगर मैं एक चैप्टर पढ़ रहा हूं कोई भी बच्चे लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे आई स्टार्ट टेकिंग डाउन इंपॉर्टेंट नोट्स दैट आर देयर चिल्ड्रन. ओके, एंड वी कैन प्रेजेंट दिस नोट्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस. अच्छा, तो ये क्या था बच्चों लोग? दिस वाज नोट टेकिंग. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस चिल्ड्रन की लाइक, सर व्हाट इज नोट मेकिंग देन? सो नोट मेकिंग चिल्ड्रन इज अ मोर एक्टिव एंड फोकस्ड राइटिंग स्किल. So two words children that they have used है. ऊपर उन्होंने बोला था passive करके, यहाँ पे उन्होंने बोला है active, and it's a focused writing skill where a concrete connection is made between all the relevant concepts and the words is drawn to infuse or connect all thoughts together by a method. तो बच्चे लोग आप points use कर सकते हो, आप diagrams use कर सकते हो, you can use a table. So note making children does not have a particular laid down format. तो यू माइट टेक आउट, अगर आपने एक पैराग्राफ पढ़ा और आपने उसके मेन पॉइंट्स निकाल दिए, अगर आपने एक डायग्राम के जरिए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने एक पैराग्राफ पढ़ा एंड देन यू जस्ट प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ पाई डायग्राम or in the form of a histogram or a bar diagram, or children, the entire thing you can also present it through a
टेबल. अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की लाइक उन्होंने कुछ सॉइल्स के बारे में पैराग्राफ लिखा था, फिर मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, वो सॉइल्स फॉर्म कैसे होते हैं, अच्छा वो सॉइल का यूज क्या होता है चिल्ड्रन, फर्टिलिटी लेवल्स क्या है. तो चलो आपने एक मस्त टेबल बनाया, एक में आपने लिख दिया टाइप्स ऑफ सॉइल करके. वी आर ऑल द सॉइल्स, वी हैव गॉट ब्लैक कॉटन सॉइल, देन वी हैव गॉट एलुवियल सॉइल, सैंडी डेजर्ट सॉइल, रेगुड सॉइल, राइट. अच्छा, उसके आगे आप लिखोगे कि अलग पैराग्राफ में कि लाइक फॉर्म कैसे होता है, कौन से क्रॉप्स वहां पे ग्रो कर सकते हैं. दैट मीन्स चिल्ड्रन द एंटायर पैराग्राफ यू हैव प्रेजेंटेड इट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. तो आपने देखा आपको बहुत एक्टिवली चीजों पे फोकस करके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को मस्त कनेक्ट करना है यहाँ पे, और you want to use a very typical or particular method children to display all these things, to present all these things. So children, ये क्या हो गया, these are the differences between note taking and note making. तो बच्चों लोग जब आप लेक्चर के लिए बैठोगे और जो सर बोल रहे हो वो सब आप लिखते जा रहे हो, तो उसको हम लोग नोट टेकिंग बोलते हैं. फिर आप जब बैठ के इस पैराग्राफ को जो आपने लिखा था उसको जब आप क्या करोगे, पॉइंट वाइज बना दोगे, फिर उसे में से एक डायग्राम तैयार करोगे, या फिर फ्रॉम दैट चिल्ड्रन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अ table, then that will be known as note making. Note taking children is a passive process because you don't play much role in that, but when you're making a note your contribution comes into focus and it's a very active and a focused writing skill जैसे. तो जैसे बच्चों नोट टेकिंग और नोट मेकिंग के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, वैसे ही उसके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज मिलेंगे आपको. Okay, you will find some similarities. Now what are the similarities? So here is a paragraph children which is talking about some similarities between note taking and note making. अच्छा, दोनों का भी काम क्या होता है बच्चों लोग कि आसानी से किसी बात को समझना है तो नोट्स बहुत काम आते हैं. बच्चों लोग कभी हम लोग ज्योग्राफी में या फिर कॉमर्स पढ़ते वक्त आपने देखा था वी हैड सो मेनी फिगर लाइक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. We used to have like roadways, waterways, airways, railways. फिर हर एक के बारे में कुछ डेटा दिया जाता था. Along with that, children used to have those merits and demerits, advantages, disadvantages. इतना बड़ा लेसन बच्चों लोग 7-8 पेजेस पढ़ने पड़ते थे. तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? It's very simple, children. What you can do now? You just took a page. ऊपर आपने लिखा modes of transport. फिर आपने 4 टाइटल्स दे दिए, road transport, water transport, air transport and rail transport. फिर आपने हर एक के बारे में कुछ पॉइंटर्स लिख दिए और उसके नीचे आपने 2 ग्राफ्स बनाए. एक में आपने लिखा है मेरिट्स और एक में लिखा है डिमेरिट्स. बच्चों लोग 5 मिनट में आप पूरा का पूरा लेसन वहां पे 2 मिनट में समझ सकते हो. जैसे चिल्ड्रन इन इकोनॉमिक्स व्हेन यू गो टू स्टडी अबाउट लाइक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उन्होंने भर के लिख के दिया बच्चों लोग. अगर आप उसका एक मस्त टेबल बनाओगे तो 5 कॉलम्स में फिर हर एक का डायग्राम, हर एक का न्यूमेरिकल एग्जांपल, फिर इलास्टिसिटी का वैल्यू आता है चिल्ड्रन, और 2 मिनट में बच्चों लोग आपको पूरी चीज आसानी से समझ में आती है चिल्ड्रन. सो आई थिंक विच इज लाइक नोट मेकिंग या फिर नोट टेकिंग, दोनों भी बच्चों को इजी रेफरेंस के लिए काम आते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन एग्जाम के. सो इट्स लाइक इसका एक बेनिफिट होता है इजी रेफरेंस और दूसरा होता है बच्चों लोग प्रिपरेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. तो एग्जाम के टाइम पे अगर आपको कुछ प्रिपेयर करना है बच्चों लोग तो आप पूरा का पूरा बुक पढ़ते हुए नहीं बैठ सकते हो. तो ऐसे जो हमने नोट्स बनाए रहते हैं बच्चों लोग, जो नोट्स मेकिंग करते हैं हम लोग, उसके जरिए लास्ट मिनट में आप आसानी से रिविजन्स वगैरह कर सकते हो. इट विल सेव योर टाइम चिल्ड्रन एंड प्लस योर एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड सम पर्टिकुलर कंटेंट, राइट. अच्छा, both aid the student in remembering the facts easier as it utilizes both reading and listening senses. जब बच्चे लोग यहाँ पे जब आप नोट्स लेते हो तो नोट्स लेते हो आप क्या, आपका लिसनिंग का सेंस पता चलता है. जब आप नोट्स बनाओगे, नोट मेकिंग करोगे तो आपका ऑलमोस्ट लाइक एग्जांपल रीडिंग, लिसनिंग, ये सब कॉन्सेप्ट्स आएंगे वहां पे एंड यू कैन रिमेंबर द फैक्ट्स इजियर. जैसे बच्चों लोग के लिए कुछ लेक्चर्स में जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए बहुत सारे नंबर्स बताए जाते हैं, बहुत सारा स्टैटिस्टिकल डेटा दिया जाता है. सो यू कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग वर्बली बाय लिसनिंग, राइट. इफ यू पुट डाउन द नोट्स, इफ यू ऑर्गेनाइज देम नाइसली, then it becomes very easy to remember all these facts and with a not much of efforts that you have to put in children. अच्छा, दोनों का पर्पस एक ही होगा बच्चों लोग. क्या बोला मैंने यहाँ पे? दोनों का पर्पस एक ही होगा. पर्पस क्या होता है चिल्ड्रन? इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू स्टडी इन अ वेरी सिंपल वे विथ मिनिमम एफर्ट्स. क्या बोला? इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू स्टडी इन अ वेरी नाइस वे विथ मिनिमम एफर्ट्स. तो कम से कम एफर्ट्स के साथ में बच्चों लोग जब आप
ये नोट्स के जरिए पढ़ोगे तो आपका आसानी से पढ़ाई हो जाएगा यहाँ पे. सो वी वांट द स्टूडेंट्स टू एक्सेल इन देयर स्टडीज एंड चिल्ड्रन दैट कैन बी बेसिकली डन बाय मेकिंग नोट्स और टेकिंग नोट्स चिल्ड्रन. ठीक है, एंड इट हेल्प्स यू टू कॉन्सेंट्रेट बेटर एंड इफेक्टिव. बच्चों ये जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ये जो कंपैरेटिव चार्ट दिख रहा है आपको, इसी चीज को वो लोग एक आध पैराग्राफ में भी बना के देखते हैं. लेकिन अपना क्या रहता है बच्चों, जैसे हम लोग पैराग्राफ देखते हैं ना तो हाँ अरे यार इतना पढ़ना पड़ेगा. बहुत से लोगों को आदत भी रहता है कि आगे कितने पेजेस है उसको टर्न करके पहले काउंटिंग करके रखते हैं हम लोग. लेकिन वही चीज को 2-3 पेजेस को उन्होंने यहाँ पे मस्त एक टेबल में बना के दिया. चिल्ड्रन इट बिकम्स सो इजी टू कंपेयर थिंग्स एंड टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड टू कॉम्प्रिहेंड थिंग्स. तो चलो लेट्स हैव अ लुक एट दिस टेबल चिल्ड्रन. उसके बाद नोट टेकिंग एंड वी हैव गॉट नोट मेकिंग. अच्छा, नोट टेकिंग में हम लोग क्या करते हैं चिल्ड्रन, वी जस्ट जॉटिंग डाउन पॉइंट्स, इन्वॉल्व्स नो साइट इंटरप्रिटेशन. आपने जो सुना बस उसको लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ. ओके. अच्छा, नोट मेकिंग में क्या होता है बच्चों लोग कि आपको हर एक पॉइंट को क्लियरली देखना पड़ेगा और दूसरे पॉइंट्स के साथ उसको लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है बच्चों लोग. आई एम टेलिंग यू अगेन, जब आप नोट टेकिंग करते हो तो यू जस्ट गो ऑन राइटिंग वॉट एवर यू हियर और सी. When you're note making children, आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ के उस पॉइंट का कौन से पॉइंट के साथ रिलेशन है वो देखना पड़ेगा और वो लिंक बराबर से एस्टैब्लिश करना पड़ेगा आपको. सो दैट्स चिल्ड्रन व्हाट इज नोन एज नोट मेकिंग. अच्छा, दूसरी बात, वेरी लिटिल चेंजेस आर रिक्वायर्ड. जब आप नोट टेक डाउन करते हो चिल्ड्रन, व्हेन यू आर टेकिंग नोट्स, आर यू गोइंग टू यूज योर ब्रेन चिल्ड्रन मच? नो, बिकॉज व्हाट एम आई, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इकोनॉमिक्स का या फिर इंग्लिश का कोई लेक्चर सुन रहा हूं, अभी मुझे नोट्स टेक डाउन करने, तो सर जो बोलते जा रहे हैं मैं उसको पॉइंटर्स में लिखते जा रहा हूं. सो देयर आर नो मच चेंजेस दैट आर डन चिल्ड्रन. और जैसे वो बोलता है वैसे हम लोग लिखते जाएंगे. बट चिल्ड्रन व्हेन इट कम्स टू नोट मेकिंग, जब बात होती है नोट मेकिंग के बारे में, सो इट इज इजियर टू चेंज द नोट्स मेड. तो बच्चों लोग जब आपने नोट्स टेक डाउन किए हैं तो अभी आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो. जैसे कि स्पीच में एक बात अभी सर ने बोली थी और फिर 15 मिनट के बाद उसी चीज के बारे में और कोई पॉइंट आएगा तो वहां पे तो आप सीक्वेंस में लिखोगे. लेकिन जब आप नोट टेक डाउन करते हो तो फिर वो पॉइंट और ये 15 मिनट बाद जो सर ने बोला वो पॉइंट्स आप एक जगह पे रख सकते हो. दैट मीन्स यू कैन मेक सर्टेन चेंजेस. नाउ टेकिंग पॉइंट्स फ्रॉम वन सोर्स एट अ टाइम. जैसे बच्चे लोग यहाँ पे एक सोर्स के बारे में एक ही टाइम पे आप नोट्स ले सकते हो. मतलब जैसे कि लाइक सर जो बता रहा है उसके बारे में आप लिखोगे. अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप नोट्स मेकिंग करते हो, इफ यू आर नोट मेकिंग चिल्ड्रन, तो आप अलग अलग सोर्सेस के पॉइंट्स को कंबाइन कर सकते हो एक जगह पे, राइट? अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक ही टॉपिक के ऊपर 2-3 प्रोफेसर्स ने इसको स्पीच दिया था चिल्ड्रन, तो जब आप नोट टेकिंग करोगे तो एक सर ने क्या क्या बोला, फिर दूसरे सर ने क्या क्या बोला, तीसरे सर ने, ये आपने अलग अलग कर दिया बच्चों लोग. लेकिन जब आप नोट मेकिंग के लिए बैठोगे तो आप तीनों के पॉइंट्स एक जगह पे कंबाइन करके उसमें से एक मस्त नोट तैयार कर सकते हो. यस चिल्ड्रन, सो वी आर इन्वॉल्विंग और कंबाइनिंग द पॉइंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. फिर बच्चों लोग सपोज अगर आप नोट टेकिंग की बात करें तो आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है. आपको सिर्फ पढ़ने को, लिखने को, सुनने को आता रहेगा बच्चों लोग, तो जो आप सुनते जा रहे हो, जो आप देखते जा रहे हो, जस्ट या फिर जो आप रीड कर रहे हो, लिखते जाना. दैट मीन्स चिल्ड्रन note taking does not require much understanding. क्या बोला है? Note taking does not require much understanding. It can also be done with less understanding. लेकिन बच्चों लोग if you are note making तो फिर आपको बहुत सारे आपको तो बच्चों लोग 4 बार फिर वो पहले पैसेज पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि लाइक what exactly they are asking you or what exactly are they trying to tell you. So I feel that note making requires more understanding. अच्छा, फिर अगला डिफरेंस चिल्ड्रन. नाउ व्हेनेवर दे राइट डाउन द पॉइंट्स इन द रिटन और फुल फॉर्म, पॉइंट्स गिवन बाय सोर्सेस आर टेकन डायरेक्टली. मतलब पॉइंट्स आर नोट्स आर रिटन इन फुल फॉर्म. पॉइंट्स गिवन बाय सोर्सेस आर टेकन डायरेक्ट. उन्होंने जैसे बोला आप वैसे लिखते जाओ. कहीं पे रेफरेंस आया था बच्चों लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप लिखोगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन जब आप नोट मेकिंग के लिए बैठोगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखने के बजाय आपने लिख दिया WHO. या फिर आपने कुछ शॉर्टकट तैयार किया. बच्चों लोग नोट मेकिंग में जितना हो सके उतने शॉर्टकट्स आप यूज करोगे, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. इतना शॉर्टकट नहीं बच्चों लोग कि आपको समझने में दिक्कत आए. सो चिल्ड्रन हियर वी नो दैट नोट मेकिंग इन्वॉल्व्स शॉर्ट फॉर्म्स, whereas note taking involves all the
full forms. Now it only gives the early configuration or the whole topic. तो चलो नोट टेकिंग में आपको पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन या फिर पूरा का पूरा टॉपिक दिखता है. अच्छा, जैसे कि अगर आप नोट मेकिंग के लिए बैठोगे तो चलो आप वो सब बोलते ना सब जो बोला गया था, एवरीथिंग, ऑल द कंटेंट आर नॉट रिक्वायर्ड. यू आर गोइंग टू ओनली कैप्चर की पॉइंट्स. सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप कैप्चर करोगे. दैट इज कॉल्ड एज नोट मेकिंग. अच्छा, नाउ नोट्स आर मेड फ्रॉम सोर्सेस. क्या बोला है? नोट्स आर मेड फ्रॉम सोर्सेस एंड दे आर हैंडमेड सिंस द टाइम अवेलेबल इज लिमिटेड. तो जब आप नोट्स बनाओगे तो आप हैंडमेड से करोगे. चलो उसको अलग अलग सोर्सेस से कलेक्ट किए जाते हैं क्योंकि हमारे पास वो सर बोलते जा रहा है तो चलो आप वहां पे ज्यादा टाइम नहीं होता तो आपको मतलब फॉर एग्जांपल लिखते जाना है. योर टाइम लिमिट इज देयर चिल्ड्रन. लेकिन जब आप नोट मेकिंग के लिए बैठोगे तो ध्यान रखना बच्चों लोग कि दे विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर्स. नाउ सपोज फॉर एग्जांपल या तो हैंडमेड हो सकते हैं बच्चों लोग या फिर बहुत सारे सिचुएशंस में हम लोग उसको क्या कंप्यूटर से भी बना सकते हैं. अच्छा, and then that's how children will be making those notes here. Now children, कि like when it comes to note making, many times it so happens कि like आपको सवाल आता रहेगा कि like सर कैसे बनाए जाते हैं actually notes. तो whenever you are given a particular paragraph, आपको जब भी एक पैराग्राफ दिया जाता है तो उस पैराग्राफ को हम लोग नोट मेकिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो सपोज चिल्ड्रन यहाँ पे दिया है चलो स्टाइल्स ऑफ नोट मेकिंग. क्या क्या? एक आपको पैराग्राफ दिया, आपने टेबल बनाया. आपको पैराग्राफ दिया, आपने चार्ट्स बनाए. चार्ट्स में बच्चों लोग बार डायग्राम आ सकता है, पाई चार्ट आ सकता है, फिर फ्लो चार्ट, या फिर आपने लाइन का कोई ग्राफ बना दिया, या फिर चिल्ड्रन कैन आल्सो मेक व्हाट इज नोन एज अ ट्री डायग्राम. अच्छा, पिक्टोग्राम्स भी बना सकते हैं, या फिर आप मैप या फिर कोई प्लान भी बना सकते हो. राइट. अच्छा, तो चिल्ड्रन हियर दे हैव गिवन यू अ सैंपल जहां पे मैं आपको ये पैराग्राफ एक्सप्लेन करूंगा. अच्छा, उसके बाद में नीचे कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे उन्होंने और कुछ पॉइंट्स ओमिटेड रहेंगे. तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ के फिर वो डायग्राम कंप्लीट करने की कोशिश करोगे आप. ठीक है. फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कि लाइक उसका पूरा आंसर कैसे आएगा, लेकिन आप थोड़ा ट्राई कर सकते हो. ठीक है. अच्छा, बट बिफोर दैट चिल्ड्रन, बिफोर आई बिगिन, लेट मी टेल यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. सपोज आपको एक पैराग्राफ दिया तो आप थोड़ा मेंटली डायग्राम तैयार कर सकते हो. अच्छा, क्या है सुनो बच्चों लोग. लाइक दे से दैट like a very famous watch manufacturing company in its board of directors meeting decided that they are going to produce 3 different types of watches. अच्छा, उसके बाद में बोलते कि like that is going to be wrist watch, wall clock and alarm clock. Wrist watches would be produced in 3 different types. Wrist watches for men, wrist watches for women and wrist watches for children. Wall clocks will be produced in 2 different ways. Industrial clock and household clock. Industrial clock will be very large and strong, whereas household clocks are going to be very small and beautiful. Acha, alarm clocks will be produced in 2 varieties. One is tabletop alarm and one is known as traveling alarm. Right? Acha, here children, suppose ये जो पैराग्राफ मैंने आपको ओरली बताया, अगर आप इसको डायग्राम में बनाना चाहते हो तो आप ऊपर क्या लिखोगे? टाइप्स ऑफ वॉचेस. उसके नीचे कितने ब्रांचेस बनाओगे? 3. पहले में आप क्या लिखोगे? रिस्ट वॉच. दूसरे में क्या आएगा? वॉल क्लॉक. तीसरे में क्या आता है? अलार्म क्लॉक. चिल्ड्रन आफ्टर दैट जहां पे आपने लिखा है रिस्ट वॉच, उसके अंदर आपको और 3 डिविजन्स बनाने पड़ेंगे. मेन, वुमेन, चिल्ड्रन. वॉल क्लॉक में आप 2 डिविजन्स दिखाओगे बच्चों लोग, हाउस होल्ड क्लॉक, इंडस्ट्रियल क्लॉक. अलार्म क्लॉक्स में आप 2 डिविजन्स दिखाओगे, टेबल टॉप अलार्म एंड ट्रैवलिंग अलार्म. तो आपने देखा चिल्ड्रन, whenever you read a paragraph you can actually imagine a particular diagram for that paragraph that we have children. Okay, so as I said children, let me explain to you this particular paragraph and then you can try on your own. जो आपके टेक्स्ट बुक में है चलो वो आप ट्री डायग्राम में कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है. Now the paragraph is based on children what is called as the fundamentals of Ayurvedic medicine. अच्छा, if you want to understand Ayurvedic treatment, it is necessary to have an idea like how Ayurvedic system regards the human body. अच्छा, बेसिक बच्चों जो फोर्स होता है लाइफ में, बॉडी में, उसको हम लोग प्राण बोलते हैं ना. प्राण इज लाइक लाइफ. इज ऑल्सो फाउंड इन द एलिमेंट्स एंड इज एनालॉगस टू द चाइनीज नोशन ऑफ chi. As Swami Vivekananda or Swami Vishnu Devanand was a yogi and an expert put it that
प्राण जो रहता है बच्चों लोग, इट इज इन द एयर बट इज नॉट द ऑक्सीजन नॉर एनी ऑफ इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब हवा में होता है बच्चों लोग प्राण, लेकिन फिर वो ऑक्सीजन नहीं होता है। अच्छा, या फिर बच्चों लोग कि इट इज इन फूड, वाटर, सनलाइट, येट मतलब खाने में बच्चों लोग प्राण है, पानी में भी प्राण होता है, सनलाइट में भी है, लेकिन विटामिन में नहीं होता है, हीट में नहीं होता है, लाइट रेज में नहीं होता है। अच्छा, एंड फूड, वाटर, एयर आर ओनली द मीडिया थ्रू विच प्राण फ्लोज। तो आपका प्राण जहां से फ्लो करता है उसको हम लोग फूड, वाटर, एयर करके बोलते हैं। अच्छा, तो इन आयुर्वेदा चिल्ड्रन वी गॉट देयर आर बेसिक एलिमेंट्स दैट कंटेन प्राण। कौन से बच्चे लोग, जिसको हम लोग पंच तत्व करके आपने शायद सुना रहेगा ना कभी, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। So I think, like, for example, all this atmosphere that exists around such children, that is basically related to what are called as पंच धातु करके बोलते हैं उसको हम लोग। Now, ये elements बच्चों एक दूसरे के साथ में interact करते रहते हैं and they are organized in the human body as 3 primary categories or basic physiological principles in the body that govern all bodily processes known as the dosh. Now, there are 3 doshas are vata, pitta and kapha. So I think, like, for example, vat, pitta, kapha. Now those who are like, these are basically something related to Sanskrit words that we have children. Now ये 3 दोष जो रहते हैं बच्चों लोग, तो अलग अलग लोगों में इसके कुछ ब्लेंड्स आपको दिखाई देते हैं। And they are known as prakriti. Prakriti is, like, children, it's known as health, which is the reason why Ayurvedic treatment is always personalized. अगर आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओगे तो personalized treatment मिलता है children. In Ayurveda, illness is regarded as a state of imbalance in one or more of person's दोष। तो बच्चों वात, पित्त या फिर कफ, ये एक या फिर एक साथ में मिलके इसके जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें कुछ भी इम्बैलेंस हो जाएगा बच्चों लोग, तो उसको हम लोग बीमारी करके बोलते हैं। And in Ayurvedic, physician works to adjust and balance them via a variety of methods. तो बच्चों इसमें जो imbalance आ गया उसको जो बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है वो आयुर्वेदा के जरिए की जाती है। ओके, अच्छा, तो वात दोष, पहला कौन सा दोष है बच्चों लोग, वात दोष करके बोला गया वहां पे बच्चों लोग, is associated with air and ether, that is atmosphere children ना, and in the body promotes movement, agility। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वात पीपल ऑफ टिपिकली थिन एंड लाइट, फिजिकली ड्राई स्किन होता है बच्चों लोग उनका, वेरी एनर्जेटिक एंड मेंटली रेस्टलेस। अच्छा, व्हेन वात इज आउट ऑफ बैलेंस देयर आर ऑफन नर्वस प्रॉब्लम्स, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं बच्चों लोग, नींद नहीं आएगी आपको, लोअर बैक पेन होता है या फिर हेडेक होता रहेगा, तो इसको वात बोलते हैं, वात। पित्त दोष जो रहता है बच्चों लोग, it is associated with fire and water and in the body it is responsible for metabolic process, जैसे कि बच्चों लोग आपका जो पचन क्रिया रहता है ना, जिसको हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, पित्त कैरेक्टरिस्टिक्स आर मीडियम बिल्ड बॉडीज, अच्छा, फेयर स्किन होता है बच्चों लोग, स्ट्रॉन्ग डाइजेशन, अच्छा, गुड मेंटल कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, लेकिन पित्त में बच्चों लोग अगर इम्बैलेंस हो गया तो ध्यान रखने का, एंगर, गुस्सा, अग्रेसिव, स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशंस जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम यानी स्टमक प्रॉब्लम, अल्सर होंगे आपको, लिवर का प्रॉब्लम होगा बच्चों लोग, या फिर यू कैन कम इनटू हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब बच्चों लोग वापस से वही ब्लड प्रेशर बोलते हैं उसको हम लोग। एंड लास्टली चिल्ड्रन, द कफ दोष इज एसोसिएटेड विथ वाटर एंड अर्थ। अच्छा, जिनको कफ का कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा बच्चों लोग, दे आर जनरली लार्ज और हैवी, मोटे रहते हैं लोग, मोर ऑयली कॉम्प्लेक्शंस। अच्छा, they tend to be very slow, calm and peaceful। अभी कफ में अगर बच्चों लोग कुछ डिसऑर्डर आ गया तो ध्यान रखने के बच्चों लोग, ग्रीड, क्या है, ग्रीड, पोजेसिव होते हैं लोग, ओबेज रहेंगे, मोटे, फटीग, थक जाते हैं, ब्रोंकाइटिस, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम बच्चों लोग, और उनको साइनस का भी प्रॉब्लम हो जाता है चिल्ड्रन। सो आपने देखा रहेगा, मतलब आपको जितने भी बीमारीज होते हैं या फिर वॉट एवर इलनेसेस चिल्ड्रन दैट वी कम अक्रॉस, आप देख सकते हो कि लाइक ये 3 में से किसी एक के अंदर फिट हो ही जाएगा मतलब। तो डिड यू जस्ट नोटिस चिल्ड्रन कि लाइक आयुर्वेदा ने सब के सब इलनेसेस को मस्त 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है बच्चों, दैट इज वात दोष, पित्त दोष एंड कफ दोष।
अच्छा, तो आप भी थोड़ा जान सकते हो बच्चों कि लाइक आपको इसमें से कौन सा दोष है और फिर उसके हिसाब से हम लोग वो ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं. ओके, नाउ चिल्ड्रन, दिस गोइंग टू बी वन वर्क फॉर यू. यहाँ पे जो मैंने आपको अभी पैराग्राफ एक्सप्लेन किया चिल्ड्रन, दैट इज बीइंग गिवन हियर इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम. सो आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा चिल्ड्रन, यू आर गोइंग टू जस्ट ट्राई टू कॉन्सिडर इनटू दैट चिल्ड्रन, राइट. और तो यहाँ पे उन्होंने एक ब्लैंक छोड़ दिया बच्चों, तो आप उसको फिलअप करोगे. फिर बॉडीली प्रोसेस में दोष दिए हुए वात दोष, पित्त दोष एंड कफ दोष एसोसिएटेड विद एयर एंड इतर दिया हुआ बच्चों लोग. यहाँ पे ये आपको फिलअप करना, ये दिया है वाटर एंड अर्थ. अच्छा, अलॉन्ग विद दैट चिल्ड्रन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए, दो के दिए हैं, तीसरा आपको फिलअप करना है. और जो इम्बैलेंस है चिल्ड्रन, उन्होंने पहला वाला ब्लैंक छोड़ा है, आगे का आपको मतलब फॉर एग्जाम्पल दो दिए हुए. अच्छा, तो एंड वी कैन ट्रांसफर द अबाउ इंफॉर्मेशन in the bodily process, वो भी हम लोग कर सकते हैं. So I should be showing you the answer in the coming lecture, but you people are going to try to solve this particular table and I hope you will be able to do it children. सब कुछ स्पून फीडिंग के लिए एक्सपेक्ट मत करना, you will be able to do it. तो आप अपना टेक्स्ट बुक उठा के बच्चों इसमें थोड़ा फिलअप कर सकते हो, राइट. So children, that's all for today. We discuss what's called note making. तो एक्सरसाइजेस वगैरह हम लोग सॉल्व करेंगे या फिर मैं आपको कुछ दे सकता हूँ इसके शीट्स वगैरह भी, बट we'll just wind up today. In the coming lecture children, we'll be meeting with more discussions. Okay, and then take care everyone. See you in the next lecture. Bye everyone.